दिस इज नॉट अनदर रेगुलर पॉडकास्ट जिसमें हर चीज स्क्रिप्टेड है, गेस्ट आ रहे हैं, स्क्रिप्ट के हिसाब से बोल रहे हैं, सब कुछ उसी वे में शूट हो रहा है और आपको प्रेजेंट किया जा रहा है. वी एक्चुअली नीड समथिंग रॉ, समथिंग रियल, बिकॉज रियल ग्रोथ needs a real perspective, and for real perspective you have to have that real experience. उसी चीज के लिए what I'll do, I'll invite guests to visit me. I'll invite guests to have a coffee with me or maybe to hang out with me without telling them कि हम इस conversation को shoot करने वाले हैं. लेकिन जब हम इस conversation को shoot करेंगे, you'll see their real side, real conversation, real story of their life, how they have been to that level. और इसी को हम नाम देने जा रहे हैं Real with Ritesh. I'm sure this will be very valuable to you because that real raw side you will never have ever on any other platform, but you're gonna get it here. So just join me in this series and let's get you the real growth. Hi V, all good, how are you? Good to see you. Okay, so we will be shooting for our series. Tonight, this will be Real with Ritesh to have a raw conversation about your experience and your journey. All good with that? Okay, great. Let's go. Let's order and then we'll go and shoot. So we are waiting for the first time as well. That'll be very raw. So you can take my full name, like people know me by Gurmeet Kaur Taliwal. So today we are having a real conversation with my friend Gurmeet Kaur Thaliwal. She's a powerhouse in training. She's a powerhouse in skills enhancement, which gets you the job. But just to let you know, like this is a very spontaneous episode. And as we met her, she's also a bit surprised. Like, Yes, exactly. मतलब मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि ये ऐसा कुछ पॉडकास्ट या पूरा ऐसा सेटअप होगा. इट्स रियली नाइस. मतलब like are we going to have a very kind of serious discussion? it will be a conversation for sure that can Okay. help a lot of people. But हम इसको बिल्कुल हाँ. लाइट रखेंगे, बिल्कुल रो Okay. रखेंगे, because theme of this series is कि जो हम रियल लाइफ में बातें करते हैं, that is actually a story. That is Exactly. actually a inspiration for most of the people. तो हम वही बातें करेंगे जो उनको काम आ सके. It will be fun. It will be Yes. engaging for them. Let's have the conversation, right? Great. So Wonderful. your personality is like you are a skills trainer, and I've witnessed you. I've heard from a lot of students too कि वो आपसे ट्रेनिंग लेके जॉब्स की तरफ जाते हैं. सो दैट विल बी द की पॉइंट टुडे. मुझे Okay. उन लोगों के बारे में बात करनी है जो जॉब्स लेने की सोच रहे हैं, जिनको कुछ ना कुछ उस चीज में चैलेंज है. दैट्स वन स्टोरी. Right. But there's other side to your story also. That is, you're a solo traveler, right? A girl Okay. who is solo traveler and inspiration for a lot of other girls, right? So let's start from the skill side. How did you land it into this career? Okay. All right. It's a very long journey. Um, मतलब I actually no one even asked me this question. आज तक मुझसे कभी बहुत कम लोगों ने क्वेश्चन पूछा है और मैंने ऐसी कभी कोई एक्सप्लेनेशन दी नहीं है कि हाउ आई एक्चुअली एंटर्ड इनटू दिस प्रोफेशन. तो इसकी बहुत पीछे बैक एंड स्टोरी है. सो सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट माय प्रोफेशन, लाइक इट्स बीन 12 इयर्स, राइट. मेरे को 12 इयर्स हो गए हैं बीइंग अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, कम्युनिकेशन कोच, लाइफ स्किल्स कोच, जो भी आप कहते हो. एंड ये 12 साल मुझे पता नहीं कैसे गए हैं, बिकॉज इतना मतलब लाइक इंटरेस्ट आ गया था इस ट्रेनिंग्स में एंड एवरीथिंग. बट दिस एंटायर जर्नी ये बिल्कुल भी प्लान नहीं थी रितेश, बिल्कुल भी प्लान नहीं थी. आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई कंप्लीटेड माय एमबीए, जब मैंने अपनी एमबीए कंप्लीट की एंड उस टाइम पे मेरी प्लेसमेंट हो गई थी. देयर इज अ कंपनी कॉल्ड अमेलोरेट करके चंडीगढ़ में, एंड आई रियली वांटेड टू जॉइन दैट ऑर्गेनाइजेशन. सो मुझे था कि मैं वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करूंगी, बट समहाउ कुछ ना कुछ मतलब लाइक सिचुएशन घर पे ऐसी थी. माय फैमिली सेड कि आप नियर बाय जॉब देख लो, है ना, कि अगर आपको वहां पे कोई जॉब मिलती है सो दैट्स नाइस. तो मैंने बोला ठीक है. माय ग्रैंडमदर शी वाज नॉट वेल दैट टाइम, सो माय सिबलिंग्स दे वर आउट स्टडीइंग एंड ऑल. सो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी सपोर्ट चाहिए था. सो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आई विल सी. तो मैंने लोकल एक कॉलेज में आई स्टार्ट लाइक गिविंग इंटरव्यूज. और कॉफी आ Right. गई हमारी. Thank you. सो आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज, है ना, लोकल कॉलेज में. आई थिंक वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था. Right. और मैंने उसी कॉलेज से ग्रेजुएशन की है.
बठिंडा में काफी फेमस कॉलेज है हमारे मालवा बेल्ट का, बाबा फरीद कॉलेज, राइट। आपने सुना होगा। सो मैंने वहीं से ग्रेजुएशन की है। सो मैं वहाँ पे इंटरव्यू के लिए गई एंड मैं एक्चुअल में टीचिंग के प्रोफेशन के लिए गई थी कि यू नो आई वांट टू बिकम अ टीचर। ऐसा सोचा नहीं था, बट ठीक है चलो टीचिंग के लिए हम जा सकते हैं। सो लेकिन जब मैं वहाँ पे गई, ऑब्वियसली देवर एक्सपीरियंस मोर कैंडिडेट्स थे एंड तो उन्होंने इंटरव्यू वगैरह लिया, बट फिर प्रिंसिपल सर ने मुझे बुलाया एंड ही सजेस्टेड कि गुरमीत एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में भी हमारे पास एक वैकेंसी है। मतलब आप वहाँ के लिए ज्यादा अच्छे फिट हो, है ना, यू आर गुड एट कम्युनिकेशन एंड ऑल, तो आप एक बार वहां जाके देखो। तो मैंने बोला ठीक है, मतलब ऐसा कुछ प्लान नहीं था, बट आई थॉट कि चलो ठीक है, लेट्स गिव दिस थिंग अ ट्राई। सो मैं गई, आई गिव द इंटरव्यू एंड लाइक मेरा हो गया शॉर्ट लिस्टिंग। ग्रेट। सो इस तरीके से मैंने ये मतलब लाइक इसमें एंटर हुई। सो दिस एंटायर करियर is not by choice, it's completely by बाय chance. चांस। But somehow Ritesh, I feel really blessed that कि मैंने ये प्रोफेशन ज्वाइन किया, मैंने एंटर किया इस प्रोफेशन में, बिकॉज इफ आई टेल यू अबाउट माय स्कूल एक्सपीरियंसेस, है ना, लाइक मेरे बचपन से लेके ना, जब हम टीचर की अगर एक बात करते हैं, सो आई पर्सनली फील कि एक टीचर ना हमारे किसी भी बच्चे की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट। मतलब उसकी लाइफ की जर्नी आगे कैसी होगी, आपका जो स्कूल लाइफ है, जो ग्रोइंग स्टेज है, पर्सनली फील उसमें एक टीचर बहुत कंट्रीब्यूशन ऐड करता है, ठीक है, आपके कॉन्फिडेंस में, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में, आपके एटीट्यूड में भी इवन। तो मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे नहीं थे, टू बी रियली ऑनेस्ट, राइट। बहुत अच्छे टीचर्स भी मिले, मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगी, बट व्हेन आई वाज ग्रोइंग, सो आई वाज ऑलवेज अ वेरी स्लो चाइल्ड, राइट, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। मैं वो मूवी है तारे जमी पर, वो जो मैंने मूवी देखी थी, आई एक्चुअली क्राइड अ लॉट एंड आई रिलेट, मतलब मैं रिलेट कर पा रही थी उस मूवी से। हालांकि वैसा कुछ नहीं था मतलब मेरे को, बट आई वाज अ वेरी स्लो लर्नर। राइट। आई वॉज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड, मुझे फिफ्थ तक डिवाइड करना नहीं आता, सिक्स तक मुझे टेबल तक नहीं आते थे, ठीक है। सो आई वॉज अ वेरी स्लो किड एंड जो टीचर्स थे दे वर नॉट लाइक ज्यादा काइंड नहीं थे। मुझे याद है सेवेंथ क्लास में हमारी एक टीचर होती थी, उन्होंने ऐसे बॉडी शेम किया। फिफ्थ क्लास में थी, इवन मैं बहुत अच्छे से पढ़ के भी गई थी, तो भी उन्होंने मतलब मेरे को सारी क्लास के सामने थप्पड़ मारा, और वो थप्पड़ मेरे को लाइफ टाइम आज तक याद मुझे वो रहा। याद है, वो एंटायर इंसिडेंट की कैसे राइट। मैं फिफ्थ ए से फिफ्थ बी में गई थी। एंड उनको लगा कि भाई ये तो इंटेलिजेंट नहीं है लड़की, ये तो बहुत नालायक सी है, तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। सो ऐसे ना सर्टेन इंसिडेंट मेरी लाइफ में होते रहे हैं, एंड समहाउ मैं बड़ा मतलब इस चीज को लेकर, और इसने मेरी पूरी जर्नी में, उसमें राइट। स्कूल लाइफ में तो आई वाज लाइक वेरी बिलो एवरेज चाइल्ड, है ना, और कोई ज्यादा नॉट पार्टिसिपेशन, थोड़ा बहुत चलो स्कूल में करते थे, लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिवली नहीं। नॉट गुड एट इंग्लिश, राइट, इंग्लिश भी मतलब ठीक ठाक थी। सो नाइन्थ क्लास में, इवन सेवेंथ क्लास में आई स्कोर जीरो इन मैथमेटिक्स। ओके। मतलब माय फादर सेड, मेरे डैड के मैथ्स बहुत अच्छा है, तो उन्होंने बोला कि बंदा कोई प्लस माइनस भी अच्छा कर लेता है ना, तो भी एक दो नंबर आ जाते हैं। सो इस तरीके से, एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि वो क्लास ने किस तरीके से मॉक किया था और मजाक उड़ाया था, एंड टीचर ऐसे मेरे को देख रहे थे। तो मेरे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे, और नाइन्थ क्लास में आई फेल्ड ड्यूरिंग माय नाइन्थ फाइनल्स। ओके। तो मेरे जो सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, एंड इन सब चीजों से जब मैंने इस जर्नी को ज्वाइन किया, ठीक है, जब मैं ट्रेनर बनी, एंड आई स्टार्टेड लाइक एक साल में मेरा थोड़ा सा मन बना कि आई वांट टू कंटिन्यू दिस, ठीक है। तो मैंने एक चीज रियलाइज की कि मुझे नहीं पता कि मुझे कैसी ट्रेनर बनना है, टीचर बनना है। आई हैव नो आइडिया। मैं आज भी कहती हूँ कि मुझे नहीं पता लाइक मैं अच्छी हूँ कैसी हूँ, बट मुझे इतना पता है कि मुझे कैसा टीचर या ट्रेनर नहीं बनना, राइट। ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मेरी जो जर्नी थी, जब मैं देखती थी कि मुझे कभी भी वो सपोर्टिव टीचर्स नहीं मिले, ठीक है, ड्यूरिंग वेरी इनिशियल एज, तो उन एक्सपीरियंसेस से मुझे लगा कि दिस इज समथिंग जो एक किसी भी बच्चे की, या इवन आप कॉलेज की भी बात करो, तो बहुत वैल्यू एडिशन होता है, ठीक है, आप कैसे एनकरेज करते हो किड्स को। राइट। So I think that is the back end story. It was never by choice, right? It is by chance. लेकिन I'm really thankful. I'm really happy कि मैं इस प्रोफेशन में एंटर की। It's been 12 years. I have trained more than 60,000 students, वाओ। and I'm really connected to a lot of students. Even till date, बहुत अच्छा students के साथ circle है, बहुत सारे students के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। And when I see their transformation, so हुआ क्या, जब मैंने like I started with this, है ना, तो initial career में भी थोड़ी बहुत problems आई, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, और कैसे हो गई ये चीजें।
बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जब मैंने स्टूडेंट्स में चेंजेस आने शुरू हुए, और जब आप किसी बच्चे में चेंज देखते हो और वो आपको आके बताता है कि मैम आपकी वजह से मतलब मेरे कॉन्फिडेंस में चेंज आया हम्म, है, मैम आपने हमें ये चीज बताई थी, तो हम इस चीज के साथ कनेक्ट करते हैं। सो जब वो ट्रांसफॉर्मेशन और वो थोड़ा सा सक्सेस में स्टूडेंट्स में मैंने ऑब्जर्व किया, देखा, और मुझे लगा कि यार दिस इज समथिंग रियली नाइस, है ना। राइट। हम किसी की लाइफ में एक वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, किसी की लाइफ को बदल रहे हैं, इससे बेटर क्या हो सकता है। सो आई थिंक तब से मुझे पता लग गया कि दैट दिस इज इज ग्रेट। माई कॉलिंग। आई थिंक आपने जो स्टोरी बताई, यू योरसेल्फ हैज ट्रांसफॉर्म्ड, राइट? वहां पे जो आप एग्जैक्टली। अपनी 7th स्टैंडर्ड एंड 9th स्टैंडर्ड की बातें बता रहे हैं, नाउ यू आर एट अ मोमेंट वेयर यू आर एक्चुअली ट्रेनिंग पीपल, वेयर यू आर एक्चुअली गाइडिंग पीपल, एंड यू सेड वेरी राइट कि आपको ये पता है कि किस तरह का टीचर या ट्रेनर नहीं बनना। नहीं आई बना थिंक है। दैट जर्नी, दैट एक्सपीरियंस व्हिच यू आर सेइंग वेरी राइटली, वही आपको एक बूस्ट दे रहे हैं कि how you can change the lives of students, right? सो ट्रू। And I definitely believe that you have like 60,000 students. Just imagine you have trained all those people, and especially you're working in Punjab and North यस, India area, right? बिल्कुल। So for the community, it's definitely a give back. हम्म, So my understanding on this is कि अगर आप किसी एक पर्सन की लाइफ को भी चेंज कर देते हो ना, लाइक यू हेल्प दैट पर्सन टू गेट एनी सॉर्ट ऑफ लिविंग, तो राइट। आप ये समझो कि पूरी दुनिया आपके लिए तो मतलब सेटिस्फाइंग आपके लिए वो एक्सपीरियंस है कि आपने दुनिया जीत ली। दुनिया जीत बट ली आप है। तो 60,000 लोगों की बात कर रहे हो, सो आई एम बिल्कुल। प्रीटी श्योर देयर विल बी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, देयर विल A बी lot वेरी of stories. इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस जो हम्म, आपने अभी तक हाइड करके रखे होंगे, बट डेफिनेटली पीपल वांट टू लिसन। सो कोई राइट। ऐसा अनएक्सपेक्टेड सा, कोई ऐसा अनयूजुअल सा एक्सपीरियंस जिसने आपको इतना मॉरली बूस्ट कर दिया कि यार दिस इज द थिंग आई वांट टू डू। राइट। इफ आई टॉक अबाउट माय एक्सपीरियंसेस रितेश, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जहाँ पे मेरे को अगेन बार बार मैं थैंक्स करती थी कि मैं इस प्रोफेशन में आई, और लाइक आई एक्चुअली फील रियली गुड एंड प्राउड। सो समटाइम्स एज अ पर्सन आई टेल यू, सो आपकी प्रोफेशनल एक जर्नी होती, करियर होता है, and you're like uplifting other people, but somehow there are certain, एक लाइफ में आपका थोड़ा बहुत बीच बीच में in between टाइम आता है where you question like am I going on the right path, है ना, राइट। हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बट फिर बीच बीच में कुछ ऐसे, जब स्टूडेंट्स के साथ क्योंकि रेगुलर इन टच में हैं, ट्रेन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते हैं, तब मुझे लगता है कि why I am doubting myself. There are so many examples जो मुझे डेली बेसिस में मेरे स्टूडेंट्स इंस्पायर कर रहे हैं कि why I should be in this profession, राइट। right? So एक बहुत ही रैंडम सा मैं आपको आई वुड लाइक टू टेल अ स्टोरी। बहुत सारी स्टोरीज हैं, उनमें से मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। तो मैं ना फतेहगढ़ साहिब में, बिकॉज मैं ऑलमोस्ट सारे पंजाब में अलग अलग जो कैंपसेस हैं उनमें जाती हूँ ट्रेनिंग्स के लिए। सो देर इज अ कॉलेज नेम्ड माता गुजरी राइट। कॉलेज है फतेहगढ़ साहिब में। तो मैं वहां पे सेशन लेने गई, और सेशन लेने के बाद सो आई वाज ना वेटिंग एट द बस स्टॉप, राइट, कि बस आ जाएगी, तो मैं बस स्टॉप पे आराम से वेट कर रही थी। सो ऐसे ना सामने गाड़ी आई, और एक उसमें से स्टूडेंट थी, लड़की थी, वो बाहर आई, तो उसने मेरे को देखा, वो पहले गाड़ी में बैठ के देख रही थी, तो मुझे लगा कि शायद मे बी पता नहीं कौन है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो गई है ना। तो मैं बैठी रही वहां पे, फिर वो बाहर निकल के आई, एंड उसने बोला कि हेलो मैम, आपने मेरे को पहचाना क्या? तो मैंने बोला हेलो, मैंने कहा नहीं सॉरी, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो शी सेड कि मैम मेरा नाम रमन है, एंड मैं ये क्वेस्ट कॉलेज है यहाँ पे झंझेड़ी में। सो शी सेड कि मैं क्वेस्ट ग्रुप से हूँ, और मैं आपने हमें ग्रेजुएशन में हमारी क्लासेस ली थी, सॉफ्ट स्किल्स के सेशंस लगाते थे आप। तो मैंने बोला ओके ओके ठीक है, मुझे याद आ गया। तो मैंने उससे पूछा ऐसे कैसे, देन शी टोल्ड मी कि मैं यहाँ पे नियर बाय रहती हूँ, एंड अभी मैं मोहाली जा रही हूँ बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड ऑल। सो ऐसे बहुत ही कैंडिड सी कॉन्वर्सेशन चल रही थी। तो मैंने बोला ठीक है, नाइस, वंडरफुल। सो शी वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। तो उसने बोला कि मैम मैं भी बस से जा रही हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, बैठ जाओ, हम बातचीत कर रहे हैं, कैसी चल रही है प्रेपरेशन एंड ऑल। एंड उसने बोला कि मैम आपने हमें बहुत हेल्प की, आई रियली थैंक यू सो मच, लाइक यू आर सच एन इंस्पिरेशन एंड ऑल। तो मैंने बोला हाँ ओके फाइन। सो आई वाज ऑल ओके यहाँ तक, है ना, कि ठीक है, बच्चे अक्सर कहते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। एंड सडनली मेरा ना ध्यान उसके, मतलब उसने जैसे मोबाइल निकाला, तो मेरा उसके मोबाइल के ऊपर ध्यान गया। तो मुझे लगा कि शायद ये मेरी पिक्चर है। ओके। तो मैंने उसको बोला कि रमन ये आपके वॉलपेपर पे, मैंने कहा इज दिस मी, ये मेरी पिक्चर है। तो शी सेड कि हाँ जी मैम, ये हमने फोटो खिंचवाई थी ना जब आपका लास्ट डे ऑफ ट्रेनिंग था। तो मैंने बोला अच्छा अच्छा। तो शी सेड कि, मैंने कहा हाँ मुझे याद आ गया। शी सेड कि मैम ये मैंने वॉलपेपर लगाया हुआ है ना, उसने वॉलपेपर लगाया था उस फोटो का। एंड उसके बाद मतलब जो उसने कहा, एक्चुअली आई फेल्ट कि
तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा ट्रेनर होना या इस जर्नी में होना, लोगों में ये चेंजेस लेके आना, व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग, है ना। मुझे उस दिन लगा कि आई एम डूइंग समथिंग रियली ग्रेट। तो उसने बोला कि मैम, आई कंसिडर यू एज माई इंस्पिरेशन, आपने हमें बहुत मोटिवेट किया है, नॉट ओनली ड्यूरिंग द सेशंस, अबाउट योर अदर एक्टिविटीज, यू ट्रैवल राइट, एंड यू गो टू डिफरेंट प्लेसेस, आप वहां जाके स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हो, आपने हमें इतने अच्छे तरीके से ये चीजें समझाई, एवरीथिंग राइट। सो उसने बोला कि मैं आपको इंस्पिरेशन मानती हूँ, एंड मैंने ना ये आपके साथ जो फोटो ली थी, इसका ये वॉलपेपर भी मैंने लगाया है कि आई वांट टू बिकम लाइक दिस पर्सन। एंड उसने बोला मैंने इसका प्रिंट निकाल के अपने रूम में भी, शी इज प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट राइट जॉब, तो उसने बोला कि मैंने अपने रूम में भी वो प्रिंट लगाया है कि एवरी, हर दिन जब मैं उठती हूँ तो मैं इस पिक्चर को देखती हूँ कि आई वांट टू बिकम लाइक दिस पर्सन। राइट एंड रितेश, आई एम टेलिंग यू, मैं घर आके ना उस दिन मुझे सच में, मैं कुछ टाइम के लिए ना, मतलब वो मेरी आंखों में आंसू थे, आई एक्चुअली थोड़ा बहुत, मतलब वो क्राई सेशन भी हुआ ट्रू मेरा उस ट्रू दिन, बिकॉज आई वाज नॉट फीलिंग ग्रेट। उससे कुछ दिन पहले मेरे ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे थे, आई वाज फीलिंग इमोशनली लो एंड ऑल। तो लेकिन मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि यू नो समटाइम्स वी डाउट आवरसेल्फ एंड सो मेनी अदर थिंग्स ऐसे लाइफ में चलती हैं, बट मैंने कहा कि यू नो somebody इज कंसिडर्ड लाइक, ऐसे कंसिडर करते हैं आपको इंस्पिरेशन, एंड वो कर रहे हैं कि यू नो आई वांट टू बिकम लाइक यू। राइट एंड तब मुझे रियलाइज हुआ कि यू नो हम किसी की लाइफ में कितना कंट्रीब्यूशन यस ऐड करें, हम किसी के लिए यस क्या विजन दिखा रहे हैं, कितना किसी के लिए एनर्जी हो सकते हैं, यू हैव नो आइडिया। ट्रू तो ट्रू आई थिंक वो एक ऐसा बहुत ही मेरा लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट, आई हैव द पिक्चर राइट, मैं आपको आई कैन शो यू द would love to पिक्चर see आल्सो। would love to see यस, तो मैंने फिर उनसे बोला कि मुझे ये पिक्चर देना। सो आई वाज लाइक, ये उसने इस तरीके से, ये देखो, right वी शो कैन कर शो देना yes दिस right राइट, आई विल शो यू। perfect yes सो दिस इज द पिक्चर, रमन इसका स्टूडेंट का नाम है ना। so Raman जहाँ पे भी आप हो give यस your you know sort of क्या कहते हैं appreciation for ma'am यस she's राइट doing a great job I know her definitely and your testimony is that I think other students also you यस just met one right ये definitely एक fan moment था मुझे जहाँ तक लग रहा है बिल्कुल कि आप you बिल्कुल, got a fan but the difference is in this real life you're not just getting a fan you're actually empowering your fan आप उसको राइट कहीं ना राइट, कहीं वो चीज हेल्प कर रहे हो तो कई बार क्या होता है लाइफ के अंदर ना हम इतना कभी कभी बिकॉज इट्स ह्यूमन लाइफ राइट वी गेट लो हम अपने प्रोफेशन से हम अपनी कई बार लाइफ से वी गेट सम नेगेटिव थिंग्स टू एंड आई हैव बीन थ्रू एग्जैक्टली। दैट things too although I like stay positive all the time but there are some things जब आप अकेले में बैठे हो जब आपको कुछ आपके इंस्टेंसेस हैं तो वो आपको जब लगता है आप कि आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो चीजें ट्रू अपनी। ट्रू 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 तो तब आपको यही चीज मोटिवेशन देती है लाइक देयर आर बिल्कुल, पीपल हु आर लुकिंग एट यू देयर आर पीपल राइट हु आर राइट, फॉलोइंग यू देयर आर पीपल हु वांट टू एग्जैक्टली, बिकम लाइक यू एंड दे डू नॉट हैव दैट लाइफ व्हिच यू ऑलरेडी आर एंजॉयिंग राइट, सो बी ऑलवेज ग्रेटफुल बी ऑलवेज थैंकफुल एंड बिल्कुल। ये जो फैन मूवमेंट है ना एक भी अगर ऐसी फैन मूवमेंट लाइफ में आ जाती है तो आई पर्सनली नो it gives you 100x power to do more and give back to the society right राइट राइट, so fan movement से मेरे को एक क्वेश्चन ध्यान आया if your journey like you have to tell your journey in one movie title so ओके। what it would be साथ साथ कॉफी लेते हैं लेट्स गो अहेड बिल्कुल। थिंक अबाउट दैट कि व्हाट वैसे इट मैंने विल ऐसे बी कभी सोचा नहीं है कि किस मूवी से मैं ऐसे रिलेट करती हूँ, बट आई रिलेट मोर विद यू नो तारे जमी पे जो आमिर खान राइट का कैरेक्टर था एज अ टीचर राइट, एंड अभी एक रिसेंटली उनकी मूवी आई है सितारे जमी पर। राइट दैट्स आई थिंक यू नो एज अ टीचर एंड ट्रेनर मुझे लगता है कि मैं उस कैरेक्टर के साथ बहुत रिलेट करती हूँ, ठीक है। क्योंकि जब मैं इस जर्नी में एंटर किया, आई टोल्ड यू कि ऐसा कुछ प्लान नहीं था, ठीक है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जब मैंने चीजें शुरू की तो मैं उस तरीके से अपने स्टूडेंट्स में इम्प्रूवमेंट देखना चाहती हूँ। आई पर्सनली फील कि यू नो स्टूडेंट आपके नेगेटिव हो सकते हैं, वो यू नो अपने ऊपर डाउट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज हमारा सोसाइटी सेटअप ही ट्रू ऐसा है, ठीक है। आपको घर पे अपब्रिंगिंग कंडीशनिंग ऐसी है कि यू नो व्हेन इट कम्स टू योर एटीट्यूड, आपकी सेल्फ और ज्यादा चीजें आपको नहीं सिखाई जाती घर पे। योर पेरेंट्स दे आर लाइक रेगुलर कंपैरिजन हो रहा है, आपके मार्क्स, ठीक है, एकेडमिक्स का प्रेशर है, फिर जॉब्स का एंड सो मेनी अदर थिंग्स। सो आई पर्सनली फील कि as a teacher or a trainer, right? You should actually provide a very safe space to your students. जब वो आपके पास आ रहे हैं तो उनको लगे कि ये एक नॉन जजमेंटल जोन है।
I can share my things. I can be the most vulnerable person, in front of my teacher and trainer, right? और वहां पे वो आपके अपने साथ अपनी इनसिक्योरिटीज है, जो भी उनके कंसर्न्स हैं, मतलब वो यू नीड टू हैव दैट बॉन्ड विद योर स्टूडेंट्स, एंड वो शेयर करें, और फिर आप उनको गाइड कर रहे हो, आप इनको इम्प्रूव कर रहे हो. एंड आई एम टेलिंग यू, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जब आप वो चेंज लेके आते हो ना किसी में, देन यू फील लाइक कि मैंने लाइफ में कुछ तो वैल्यूएबल किया है. राइट. सो आई थिंक विद दैट मूवी, सो उसी से मुझको याद आई एक और चीज. मैं अभी कुछ दिन पहले आई वाज लाइक, मैंने अभी रिसेंटली कुछ पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे, और वन ऑफ माई स्टूडेंट, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर मैसेज करते रहते हैं, बहुत सारे, कि मैम आपने हमें यहाँ पढ़ाया था. वो अक्सर पहचान जाते हैं, जैसे किसी इवेंट में गए, वहां पे पहचान गए कि मैम आपने हमें ये पढ़ाया था. तो आई वाज लाइक कि ठीक है. एंड देन दे लाइक थैंक यू मैम, बिकॉज ऑफ योर लाइक गाइडेंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन हम लाइफ में ये कर रहे हैं. तो अभी रिसेंटली मुझे ना कल या परसों ही मैसेज आया, मैंने रिट्रीट के बारे में डाला था. सो आई गॉट दिस मैसेज, राइट. राइट. I have in the last 12 years मैंने इतने magical moments experience किए हैं with students. So she texted me कि मैम आपने जो skills हमें सिखाई, उसी की वजह से हाँ, उसको इसकी job, वजह से she got like अभी government job उसकी government लगी job है, लगी. PNB में. और ऐसे बहुत सारे बहुत examples हैं. moments They are होंगे, doing definitely wonderful, बहुत they are doing moments. great, they are like settled abroad, they are in government like के साथ काम कर रहे हैं, central के साथ, state government के साथ, they are in MNCs, they have their own business. Right. So So training it's really definitely, wonderful journey. बहुत training अच्छा लगता definitely है. empowers, right? So Very much, very having a much. sort of guidance gives you clarity कि कितनी जल्दी आप अपने मुकाम पे पहुंच सकते हो. That's very right. So Right. job के related मुझे एक आपसे question करना है, and I think these questions will definitely be connected to all those people. Okay. रिसेशन ऑल अराउंड, लाइक बातें हो रही है रिसेशन की, ले ऑफ्स हो रहे हैं, जॉब्स नहीं मिल रही हैं, ये सारी चीजें हैं. और मुझे कभी कभी लगता है कि इफ वी टॉक अबाउट द जॉब सिलेक्शन प्रोसेस, इट्स मोर लाइकली अ रियलिटी शो जिसमें एलिमिनेशन राउंड ज्यादा चलता है. कि आपके इंटरव्यूज तो होते रहते हैं, बट यू नो गेटिंग द ऑफर, यू आर जस्ट बीन सेड कि नहीं, you know, we have moved with some other candidate, or what sort of emails are coming in. So as a trainer, if you have to tell students कि how you should be preparing yourself, because it starts from you. आप अगर prepared हो तो you'll definitely get the opportunity. If you're not prepared from your inside, if you're not confident, तो मुझे लगता है कि वो चीज आपको opportunities भी align नहीं करती. चाहे उसको law of manifestation कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, these all things are with the students nowadays. But उसको कैसे एक तरह से वो package करें as a trainer, your perspective from the corporate side, what people are looking. Okay. So first of all, whether you want to work on your personality, you want to get placed, है ना, ultimate purpose चाहे आपका जॉब लेना है, you want to have a career, like आप अपने entrepreneur बनना चाहते हो, अपना business करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो. So I firmly believe कि सबसे पहले जब जो एक स्टूडेंट को सबसे ज्यादा जानना चाहिए, that is know yourself. Right. मैं उस मॉड्यूल पे बहुत ज्यादा काम करती हूँ, एंड दैट्स माय फेवरेट मॉड्यूल, राइट. सो नो योरसेल्फ में वी वर्क, हम स्टूडेंट्स को, जो मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हूँ, ताकि स्टूडेंट पहले खुद को जाने, ठीक है, उनकी एबिलिटीज क्या हैं, उनके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स क्या हैं, उनके थॉट्स कैसे काम करते हैं, उनके इमोशंस कैसे काम करते हैं. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इस पूरे प्रोसेस में मैं सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स के साथ फोकस करती हूँ, ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ वर्थ, ह्यूमन वर्थ एंड द स्किल वर्थ. ठीक है, अब ये चीजों के ऊपर मेरा बहुत ज्यादा फोकस रहता है कि एक स्टूडेंट को समझ में आ जाए कि स्किल वर्थ क्या है और लाइक आपका स्किल्स वर्थ क्या है. ठीक है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स अपने इस प्रोसेस में वो क्या करते हैं, मर्ज कर लेते हैं. ठीक है, एंड उनको लगता है कि एवरीथिंग इज अबाउट देयर सेल्फ वर्थ. हर चीज उनकी सेल्फ वर्थ के ऊपर है, मतलब उनको कोई चीज नहीं आ रही तो इट इज रिलेटेड टू देयर सेल्फ वर्थ. एंड जैसे आपने चीज सेल्फ वर्थ पे ली, वो आपके लो सेल्फ एस्टीम आपके अंदर आपको टच कर गया, तो वो आपके अंदर लो सेल्फ एस्टीम पैदा करेगा. ठीक है, सो आई थिंक नो योर सेल्फ के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है. वो ग्राउंड लेवल पे कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना, लिटिल बिट अबाउट डिसीजन मेकिंग. ठीक है, सो जितना वो इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अपने बारे में अच्छे से जानेंगे, ठीक है, कि उनकी चॉइसेस, उनकी लाइक्स डिसलाइक क्या है, उनकी पर्सनालिटी में क्या अच्छी चीजें हैं, एबिलिटीज क्या क्या है उनकी. ठीक है, सो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन आई वर्क ऑन द एटीट्यूड पार्ट. अब इसी नो योरसेल्फ में हम लोग एटीट्यूड के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं. there are wonderful concepts as I'm into psychology also, है ना, अभी मेरा सेकंड ईयर शुरू हो रहा है साइकोलॉजी का. तो मतलब मैं कुछ टाइम से साइकोलॉजी से रिलेटेड मॉड्यूल्स भी अपनी ट्रेनिंग्स में इनकलकेट कर रही हूँ. सो वी डू लाइक एटीट्यूड बिल्डिंग से मैं बहुत ज्यादा उनके ऊपर हम काम करते हैं कि एटीट्यूड के ऊपर आप कैसे काम कर सकते हो. सो आई थिंक वो फाउंडेशन में हमेशा ही नो योरसेल्फ को मानती हूँ कि अगर आप
खुद को अच्छे से जानते हो, हम्म, यू कैन प्रेजेंट योर सेल्फ इन अ वंडरफुल मैनर, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे आप कहीं पर भी, आप अपनी पर्सनल लाइफ की बात करो, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ की बात करो, आप अपनी सोशल लाइफ की बात करो, हम्म, इफ यू नो योर सेल्फ रियली वेल, दैट इज द गेम जो आपको वहां से प्ले करनी है, ठीक है। राइट, आप अच्छे से जानते हो, यू आर कॉन्फिडेंट, यू विल ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, राइट, ठीक है। सो वी वर्क ऑन दिस, देन वी वर्क एटीट्यूड का मैंने आपको बताया, ठीक है। सो अक्सर एटीट्यूड को लेके बहुत सारे लोगों को, बच्चों को नहीं क्लैरिटी होती, तो एटीट्यूड के ऊपर मैं काम करती हूँ। देयर आर सो मेनी कॉन्सेप्ट लाइक न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑफ ब्रेन है, दैट्स अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट, राइट। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जिनको इतने इजी वे में मैं समझाती हूँ उनको, ताकि उनको लगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, इट्स ऑल अबाउट स्किल्स, ठीक है। स्किल्स को सीखा जा सकता है, उसकी वर्थ को इंक्रीज किया जा सकता है। तो जब एक स्टूडेंट को ये पता चल गया कि इट्स ऑल अबाउट स्किल्स, इंग्लिश नहीं आती सीख लेंगे, प्रेजेंटेशन नहीं आती सीख लेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं है बढ़ा लेंगे, ठीक है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू माई स्किल्स, सो आई डोंट नीड टू टेक थिंग्स ऑन माई सेल्फ वर्थ। सो आई थिंक यहीं से उसके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की शुरुआत होती है, एंड आई थिंक द चाइल्ड इज गोइंग टू डू वंडर्स, राइट, हर फील्ड में। सो ये मेरा इनिशियल स्टेज में नो योरसेल्फ पे हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली वी वर्क ऑन द कम्युनिकेशन पार्ट, वर्क प्लेस, बाकी स्किल्स के ऊपर धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो जाता है। So if you give respect to yourself, then definitely you can conquer the world. ये बोला ही जाता है, आप अपने आप को अगर confidently जान लो, present कर सकते हो कहीं पे, बिल्कुल। जानते हो कहीं पे, right? तो अगर मैं उन लोगों की बात करूं, उन बच्चों की बात करूं, who are confident enough, who are like कि ठीक है, we can do anything, who are like कि हम education भी सही ले रहे हैं, but they still feel like there is something missing, or one piece is missing. कई बार होता है ना, there's a puzzle, like सब कुछ solve हो गया, that one piece is left, अगर वो सही जगह पे चला गया तो life will be sorted. That one skill from your side, एक वो स्किल जो बहुत अंडररेटेड है, which is like neglected ही हो जाती है। कई बार हम बड़े काम करने के चक्कर में we keep small things aside. So what will be that one skill that can fit in that puzzle जो आपकी लाइफ को सॉर्ट कर सकता है? Okay. So as such, when it comes to, अब आप इसको रिलेट करो, या तो हम कहते हैं कि सक्सेस के लिए क्या है, दैट इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ठीक है, ऐसी क्या चीज है जिससे मतलब आपके पास टैलेंट भी है एंड यू विल बी सक्सेसफुल एंड ऑल। सो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट 2-3 थिंग्स हियर, यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। सॉरी, मैं आपको डिटेल्ड है। एक्सप्लेनेशन नहीं, दूंगी it'll क्योंकि help, it'll help. आपने मुझे पूछ लिया है, तो okay. So first of all, I personally feel if you talk about one skill, जो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ, एंड इवन टू, अगर मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी किसी को कर रही हूँ, जो मैं खुद की लाइफ में भी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखती हूँ, दैट इज कंसिस्टेंसी ओवर एवरीथिंग। Right. Consistency is the game, right? I prefer, आप में जितना भी टैलेंट है, if you are not consistent, Right. if you're not disciplined enough, right, वो चीज किसी काम की नहीं है, True. ठीक है। सो कंसिस्टेंसी इज समथिंग कि आप धीरे धीरे चीजें करो, आप में टैलेंट कम है लेकिन आप कंसिस्टेंट हो किसी चीज में। आई एम टेलिंग यू, वो जैसे कछुआ और रैबिट की हमने बात देखी है ना, Right. तो आप थोड़ा सा उससे रिलेट कर लो। सो आई थिंक कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा मैं टॉप पे रखती हूँ, ठीक है। वो आपके लिए गेम चेंजर है, और कुछ नहीं करना है, आप कंसिस्टेंट रहो, आप जो करो उसमें कंसिस्टेंट रहो, तभी आपको रिजल्ट्स आएंगे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सक्सेस, जैसे आपने कहा ना कि I personally feel that, Ritesh, success is very, very subjective, right? It vary from person to person. हर एक इंसान के लिए सक्सेस क्या है, there is no particular ingredients नहीं है सक्सेस की कि अच्छा मैंने 4-5 चीजें उठाई और आपको सक्सेस मिल जाएगा। हम अपने एक मॉड्यूल में भी करवाते हैं, ठीक है, जिसमें हम भी टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स, है ना, जब ये थोड़ा नो योरसेल्फ पे काम करते हैं, तो उसमें बड़ा अच्छा उसमें एक एग्जांपल है कि इवन इफ यू हैव, लेट्स से, अगर मैं आपको कहूँ कि रितेश, कौन सी 5 चीजें हैं जो इंसान को सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए, सो यू नेम इट, लाइक आपको क्या लगता है कि कौन सी चीजें So सक्सेसफुल of होने course के लिए we can चाहिए? talk about कि मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज है, you have to have that mindset. माइंडसेट, Then ओके, otherwise, then second thing, you have to have that hard working skill. हार्ड Hard working वर्किंग कह लो, स्किल्स, smart working कह लो, but it should be a doer attitude, right? एग्जैक्टली, And the third is consistency. And कंसिस्टेंसी, then fourth is reviewing yourself. जो आप कर रहे हो, कहीं वो गलती तो नहीं कर रहे, लेकिन किसी चीज को बार बार repeat कर रहे हो, but you're not राइट। right. So सो review is other thing. विल टॉक अबाउट कि हमें हार्ड वर्क होना चाहिए, डेडिकेशन Right. होनी चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए, है ना, हमने ऐसे कुछ लिस्ट बनाई Right. कि ये सारी चीजें हैं। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लो अगर मैं आपको ये सारी चीजें दे देती हूँ, आपने कहा कि भाई सक्सेस के लिए ये चीजें चाहिए, मैंने आपको सारी चीजें दे दी, आप 100% श्योर हो कि इसके बाद भी आपको सक्सेस मिलेगा? नहीं. Not at all. That You're is the right. answer, It's right? subjective. Because it is very subjective, and उससे भी ज़्यादा important चीज़ क्या है कि even if you have everything, there are going to be blockages, challenges,
देयर विल बी सर्टेन थिंग्स जो राइट। आपकी परफॉर्मेंस को पुल डाउन ट्रू। करेंगे, ठीक है, रिस्क और डिस्कम्फर्ट उसमें कुछ ना कुछ होगा जो आपको पुल डाउन करेगा। सो यू हैव टू फिगर आउट कि वो चीज क्या है, फिर उसको हम उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। सो देयर इज वन एग्जांपल, जैसे मान लो कोई पर्सन है, ही इज अ वंडरफुल फुटबॉल प्लेयर, राइट, तो टैलेंट बहुत है, ठीक है, बड़ा अच्छा है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या है कि मॉर्निंग में सुबह 5:30 बजे उठना है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन हो नहीं नहीं उठ पा पा रहा है। सो अब टैलेंट और बाकी चीजों की कमी नहीं है, लेकिन दिस इज समथिंग, एक राइट। एरिया है जिसके ऊपर उसने काम करना है, जिस दिन वो फिक्स कर लिया वो बेटर हो ट्रू। जाएगा। सो आई थिंक कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है सक्सेस का, सक्सेस इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव, राइट। एंड इवन इफ यू हैव ऑल द स्किल्स एंड क्वालिटीज, कुछ सेटबैक्स होते हैं, कुछ चीजें होती है, ब्लॉकेजेस होते हैं जो आपको पुल डाउन करते हैं। सो राइट। यू नीड टू फिगर कि वो क्या चीज है, उसके ऊपर आप काम करना राइट। इज वेरी वेरी राइट। इंपॉर्टेंट। इवन सक्सेस की डेफिनेशन सब लोगों के लिए भी अलग है। किसी के लिए बहुत बहुत। जॉब लेना ही सक्सेस है, हम्म। किसी के लिए ये है कि मुझे पूरी दुनिया के अंदर अपना बिजनेस एम्पायर बनाना है। सो इट बहुत। डिपेंड्स ऑन दैट। यू आर हम्म। वेरी राइट ऑन दिस कि बीइंग अ मैटर ऑफ सब्जेक्ट की क्या चांस है वहाँ पे, क्या उसकी सिचुएशन है। नाउ वी कैन से कि आप ये 5 चीज़ें कर लो, लेकिन बिल्कुल। उसकी सिचुएशन ही उसको अलाउ नहीं कर रही है टू गो आउट ऑफ हिज हाँ। हाउस और हर हाउस, तो वो एग्जैक्टली चीज़ मैटर करेगी। एग्जैक्टली। कमिंग टू दिस पॉइंट, आई थिंक लेट्स टेक कॉफी श्योर साथ-साथ, श्योर। है ना? अगर वो बच्चा कहीं न कहीं आप ये कह लो कि डरा हुआ है। ओके। लेट्स से नॉट दैट कॉन्फिडेंट बिकॉज़ यू शेयर्ड योर स्टोरी आल्सो। समटाइम्स सोसाइटी के सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, दे डोंट गिव यू दैट सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस इन कॉन्फिडेंस। योरसेल्फ। वो आपको बल्कि डाउन ही करते जा रहे हैं। एनीथिंग यू ट्राई ऑन, you'll get pulled back, right? बिल्कुल। तो आप एक सोलो ट्रैवलर भी हो। आई वांट टू कम टू दैट पॉइंट, राइट? ओके। सो मुझे लग रहा है कि उसके लिए आपका जो नेम गीत, like the way we talk to each यस। other, right? That Geet suits you more for that personality. So there are two personalities of yours, right? यस। Coming to that point, you are a solo traveler. I want to start with that. Any trip, any solo trip that came in your life, जो इतना disaster वाला था, that at one point you thought of, you know what, आराम से घर बैठते हैं, नेटफ्लिक्स चलाते हैं, क्या करना है ट्रिप ट्रिप करके, ऐसा ओके। कुछ एक्सपीरियंस? ओके। सो टू बी रियली ऑनेस्ट, रितेश, मेरा आज तक कोई ऐसा ट्रिप नहीं रहा जिसमें कोई बहुत मुझे ऐसे लगा। सो आई टेल यू उसके पीछे रीजन क्या है। मतलब आज तक कोई भी मेरा ट्रिप डिजास्टर वाला नहीं रहा, ओके। सच में, मतलब टू हम्म। बी बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ आपको बता रही हूँ। अब उसके पीछे मैं रीजन बताती हूँ कि वो क्यों कभी ऐसा नहीं हुआ है ना। चलो लक भी कह सकते हो कि, बट हाँ, मैं ऐसे कहूंगी कि ट्रिप्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने लाइफ चेंज किया और बहुत कंट्रीब्यूशन ऐड किया, ठीक है। So I'll tell you, I come from an army background हम्म। family. So my father, right, उन्होंने हमेशा से ही मोटिवेट किया है फ्रॉम अ वेरी यंग एज हमें, लाइक कि चीजें खुद से करो, एंड आप ट्राई करो, वर्क ऑन हम्म। योर कॉन्फिडेंस एंड एवरीथिंग। सो वो घर में एक माहौल होता है, प्लस व्हेन यू सी योर फादर एंड माय मदर, शी इज लाइक वेरी मच हम्म। कॉन्फिडेंट लेडी। तो वो आई थिंक वो चीजें थोड़ी थोड़ी फैमिली वाइज आप में इनकलकेट होती हैं, ठीक है, हम्म। आपकी पर्सनैलिटी में आती हैं। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जब हम ग्रो कर रहे थे 17 18, है ना, तो पेरेंट्स ने कभी नहीं रोका, है ना, हमेशा पुश किया। आई थिंक वहां से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया, फिर हमने ट्रैवल करना जब शुरू किया और उससे और एक्सपीरियंसेस लाइफ में आए, हम्म। फिर मैंने अपने 20s में बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की, राइट। मल्टीपल चीजें, राइट, जिसने मेरी पर्सनालिटी में, मेरे कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन ऐड किया। तो आई थिंक मैं हमेशा वर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड ही रहती हूँ, ठीक है। तो मैं जिस भी ट्रिप पे गई, अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है तो आई डोंट कंसिडर इट एज अ डिजास्टर। आई कंसिडर कि दिस इज पार्ट ऑफ योर जर्नी, कि भाई क्या ही हो गया, मतलब हो गया तो ठीक है, नाउ वी हैव टू एज एन हैंडल दिस। एक्सपीरियंस, राइट। एग्जैक्टली exactly, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, है ना। बट वो मुझे लगता है कि वो आपकी जर्नी का ही पार्ट है, ठीक है, जैसे हम सक्सेस और फेलियर को कंसिडर राइट। करते हैं, ठीक है। सो आई थिंक वो आपकी जर्नी का पार्ट है, वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। सो आई नेवर कॉल इट कि ड्यूरिंग ट्रिप कभी ऐसा हो गया कि मुझे लगे कि मैंने ये ट्रिप क्यों स्टार्ट कर लिया। नो, आई ऑलवेज फील रियली वंडरफुल। अगर मतलब कोई ऐसी सिचुएशन आती भी है, सो एज अ ह्यूमन वी डू थोड़ा बहुत, हम पैनिक करते हैं, घबरा जाते हैं, बट फिर उसको अच्छे वे में डील करना भी पता ही है कि खुद से ही डील करना राइट। है। बट आई थिंक एवरी ट्रिप ऑफ माइंड, राइट, वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है लर्न करने के लिए। आई मीट सो मेनी न्यू पीपल एंड यू नेवर नो कब कोई एक पर्सन आपको ऐसा मिल गया है जिसने आपको कोई ऐसी चार चीजें बता दी कि राइट। आपका लाइफ और ज्यादा उसने वैल्यू एडिशन कर दिया। राइट। सो आई कंसिडर कि लाइफ चेंजिंग ट्रिप्स रहे हैं। आई टेल यू, व्हेन आई वाज इन कश्मीर, ठीक है, 2022 में मैंने कश्मीर में सोलो ट्रैवल किया था। सो उस टाइम पे हम लोग, जब मैं वहां पे गई तो देयर वाज नो प्लान, है ना। मेरे यूजुअली प्लान्स, कोई आइटिनरी ऐसा मैं नहीं बना के जाती हूँ कि यहाँ यहाँ विजिट करना है।
एक दो चीजें हुई, जैसे कई बार आपका कोई चीज छूट जाती हम्म है, या आप रास्ते में अकेले हो, मतलब हम्म ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, है ना, आप रात को अकेले आ रहे हो, आपकी बस छूट गई है, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ठीक है। बट टू बी रियली ऑनेस्ट, आई कंसिडर एवरीथिंग एज पार्ट ऑफ जर्नी, राइट। हर इंसान जो आपको मिलता है वो आपको नया पर्सपेक्टिव देता है। सो एज सच देयर इज नो पर्टिकुलर डिजास्टर वाली राइट चीज नहीं कहूंगी, राइट बट आई थिंक दे आर पार्ट ऑफ योर लाइफ, जस्ट लाइक फेलियर जैसे हमारी लाइफ राइट का पार्ट है। सो आई थिंक वो वैल्यूबल लेसन है जो हम लर्न करते हैं, और सारी उम्र वो 100%। चीजें आपके साथ रहती हैं। 100% जितने अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंसेस आई थिंक वो बिल्कुल, आपको स्ट्रांग बनाते हैं, वो बिल्कुल। कहीं ना कहीं डाउन द लाइन आपको एक्सपीरियंस की रेफरेंस आ जाती है। इवन whenever a person goes for interview तो वहां पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाँ, इस तरह की सिचुएशंस को आप कैसे हैंडल करोगे। हैंडल सो करते हो। डजंट मीन कि आपने वो कॉर्पोरेट सिचुएशन ही कभी गई है। बिल्कुल, फॉर बिल्कुल। एग्जांपल इफ आई वांट टू नो फ्रॉम माय एम्प्लॉयज लाइक हाउ यू हैंडल worst situations, so हुँ, they could be a reference from the travel कि ये बिल्कुल। सिचुएशन हुई थी और ये मैंने ऐसे हैंडल सिचुएशन करा। हुई थी। उससे we can get a clarity of the mindset हुँ, and हुँ, there's a हुँ। concept in the western world। so जब हम कनाडा में like मैं रहता हूँ तो वहाँ पे I've seen like the students वहाँ गए ना, हुँ, हुँ। they usually take a gap year, हाँ। right? वहाँ पे ये concept बड़ा हुँ, famous हुँ। है, like once you go from your high school you actually not start your graduation or post graduation right away, you actually take 1 year of gap and you travel around the world। एग्ज़ैक्टली। जितना ट्रैवल कर सकते हो वो ट्रैवल करते हैं वहां पे वो एन नंबर ऑफ जॉब्स करते हैं। मे बी हुँ। दे आर क्लीनिंग, मे बी दे आर सर्विंग, मे बी दे आर किचन हेल्पर, ऑल द ऑड जॉब्स। whatever हुँ, opportunity comes their way they do that। हुँ, and if you ask those people why they are doing हुँ। this, they just want to have the perspective of life लाइफ। कि कहाँ पे क्या चीजें कैसे हो रही हैं, and then they decide on what hospitality is the line I want to go, what हुँ, I want to be a travel consultant, what हुँ। I want to be an influencer। इनके so that clarity of mind, clarity of thought comes to those people from this travel। and हुँ। हमारे इंडिया में तो ये बोलते हैं ना कि इंजीनियरिंग करने के बाद देखेंगे करना क्या एक्चुअली। उसके बाद भी वो नहीं करेंगे। हाँ, उसके बाद भी उसके वो नहीं बाद करेंगे, कुछ कुछ और और, चीज़ हाँ, कुछ और में आप एंटर करेंगे। कर रहे हो। So from your journey, I हुँ, want to, have that sort of, motivation for the people who are watching this episode हुँ, कि हुँ, why they should travel हुँ, and हुँ। actually why they should travel solo। Because ओके, मैंने भी सोलो ट्रैवल किया है, ओके। मैंने भी, ग्रुप ट्रैवल किए हैं, हुँ, बट हुँ, एक्चुअली में जो सोलो ट्रैवल आपको एनहांस करता है, आपको एम्पावर करता है, वो नहीं है। So from my perspective too, but I want to hear from you, for the हुँ। audience, ओके, why they should travel solo। राइट। सो लाइक रितेश, आई थिंक मैं हमेशा हर किसी को, स्टूडेंट्स को, हर किसी को कहती हूँ कि भैया आप सोलो ट्रैवल करो। हम्म हर किसी को ट्रैवल करना चाहिए, ठीक है। एंड लाइफ में कुछ आपके सोलो ट्रैवल्स ज़रूर होने चाहिए। अब इसके पीछे जो रीज़न है, वो व्हाट आई पर्सनली फील इज़ कि ट्रैवल आपको बहुत कुछ सिखाता है। हम्म मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट बुकिंग, सिर्फ एक टिकट बुक करना नहीं, उस जगह पे जाना नहीं है। उसमें एक अलग ही दुनिया है, आपके हम्म अलग ही लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, और आपको कुछ नहीं पता आपके ट्रैवल में क्या होगी, क्या चीजें होंगी, ठीक है। एंड सो व्हेन इट कम्स टू ट्रैवल, आई स्टिल रिमेंबर, इफ आई टॉक अबाउट, आई एक्चुअली डोंट रिमेंबर कि मेरा फर्स्ट सोलो ट्रैवल कौन सा था, क्योंकि हम्म बहुत यंग एज से आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग सोलो। और उस टाइम पे तो कभी ऐसा सोलो वाला माइंड भी वर्ड नहीं भी था नहीं कि था, अच्छा राइट। मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ। ये तो आजकल इंस्टाग्राम पे ट्रू। बहुत फेमस हो गया है कि यू शुड ट्रैवल सोलो एंड ऑल, है ना। सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग, हम्म पीपल आर लाइक मोटिवेटिंग others for traveling solo। बट व्हेन आई स्टार्टेड, राइट, और उस पूरी जर्नी में मैं देखती हूँ तो why I consider and I always motivate my students to travel solo और उस during 20s, because travel आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है। You talk about basic जो soft skills की या life skills की हम बात हम्म करते हैं, जिन चीजों को हम एक चार दीवारी के क्लासरूम में नहीं सिखा सकते ना, आई एम टेलिंग यू वो ट्रैवल आपको सिखा सकता है। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, पंकज त्रिपाठी जी की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा वायरल थी। एंड वो बात कर रहे थे कि हर एक बच्चे को ट्रैवल करना चाहिए। एक साल के लिए आप पैसा लो, और एक साल के लिए सिर्फ आप घूमो, हम्म ठीक है, घूमो, ताकि आपको लाइफ के बारे में और चीजें पता चल सकें। इन अ वेरी सिमिलर वे मैं भी हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप ट्रैवल करो। एंड इवन मैं थोड़ा सा पेरेंट्स को, उनको बोलती हूँ अपने हम्म पेरेंट्स को कन्विंस करो। कई पेरेंट्स मिलते हैं तो उनको बोलती हूँ कि बच्चों को थोड़ा बहुत आप अलाउ करो, है ना, ट्रैवल राइट। करने के लिए। सो आप बहुत बेसिक लाइफ स्किल्स जो हैं आप अपनी पॉलिश करते हो। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट डिसीजन मेकिंग, एक स्किल की चलो हम बात कर लेते हैं। अब मैं डिसीजन मेकिंग की बात करती हूँ, या प्रॉब्लम सॉल्विंग की हम बात कर लें। नाउ व्हेन यू ट्रैवल विद अदर पीपल, ठीक है, स्पेशली अगर मैं किसी भी एज में हम बात हम्म करें, लेकिन अगर हम 20s की बात करें, सो नाउ इफ यू आर ट्रैवलिंग विद योर फैमिली, आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, या फिर किसी भी दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहे हो, मान लो कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मुसीबत आती है,
you always have a backup. Right. ठीक है, मतलब आपको पता है कि भाई ये पर्सन मेरे साथ है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला, बट आपको पता है कि मेरे साथ ये You'll depend पर्सन on है, that person. डिपेंड ऑन दैट पर्सन, ठीक है, कि Yeah. ठीक है रितेश इज देयर सो ही विल टेक केयर. तो अब इससे आप में कभी चेंजेस नहीं आएंगे. नाउ व्हेन यू ट्रैवल सोलो, आपके साथ कोई भी छोटी सी भी चीज होती है, ठीक है, आपकी टिकट गुम हो गई, आपके पास Right. पैसे नहीं है, एटीएम नहीं चल रहा, अब क्या करना है, Right. फिर आपका माइंड चलेगा कि इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आना है, ठीक है, बेसिक खाना खाने के लिए कहाँ रुकना है, क्या करना है, आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो रही है, Right. आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है, आप फुली एज अ पर्सन, यू नो, इट्स रियली रियली एम्पावरिंग. आपकी सो मेनी स्किल्स, राइट, आई थिंक इट्स ओशन ऑफ स्किल्स व्हेन इट कम्स टू, मैं ट्रैवल के साथ रिलेट करती हूँ, सो देयर इज नो पर्टिकुलर एक स्किल का मैं नाम नहीं ले सकती, ठीक है, बहुत सारी स्किल्स हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन है. एंड इफ आई टॉक अबाउट माई जर्नी, आई ऑनेस्टली फर्मली बिलीव कि ट्रैवल ने बहुत कुछ दिया है. ट्रैवल करने से पर्सपेक्टिव चेंज हुए हैं, और क्योंकि मैंने तो अपने ट्रैवल के साथ ट्रेनिंग्स को भी मिक्स कर दिया है. मैं जहां पर भी जाती हूँ, मैं वहां पे कोशिश करती हूँ कोई कॉलेज, कोई कैंपस, कोई एनजीओ के साथ मैं कनेक्ट कर पाऊँ, एंड वहां पे मैं सेशन डिलीवर कर पाऊँ, है ना, कि मेरी ट्रेनिंग सिर्फ एक लिमिटेड, कि मैं पंजाब में ज्यादा जाती हूँ, तो इट्स नॉट ओनली कि पंजाब के स्टूडेंट्स, बट आई वांट टू ट्रेन स्टूडेंट्स ऑफ यू नो लाइक अदर पार्ट्स आल्सो. सो इस तरीके से मुझे लगता है कि हर एक को ट्रैवल करना चाहिए, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा. आई एम टेलिंग यू विल नॉट बी द सेम पर्सन. कोई भी आप 21 22 23 साल के ना, आपको लाइफ में पर्पस मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो आपको समझ में आ जाएगा कि लाइफ में करना क्या है. सो अगर आप एक स्टूडेंट हो एंड इफ यू आर वाचिंग दिस, आई एम टेलिंग यू, आप प्लीज अपना सोलो ट्रैवल प्लान करो as early as possible. Yes, कैसे प्लान करना है, इफ यू नीड एनी गाइडेंस यू कैन आस्क अस, राइट, बट प्लीज अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो. और अगर पेरेंट्स देख रहे हैं रितेश, अगेन Please पेरेंट्स को allow your कन्विंस kids, करना बहुत मुश्किल होता है. especially प्लीज, girls. हाँ, प्लीज अपने बच्चों को थोड़ा सा आप अलाउ कीजिए, बिकॉज आप अगर जितना उसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, आई डू अंडरस्टैंड एज अ पेरेंट्स प्रोटेक्टिव होते हैं, हमारे पेरेंट्स भी थे, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा उनको प्रोटेक्शन दोगे, वो कभी भी यू नो एक पिंजरे में अगर आप सब कुछ चीजें दे रहे हो, वो कभी भी उड़ना नहीं सीख पाएंगे. आई बिलीव इन दिस. तो आप थोड़ा सा अपने बच्चों को अलाउ कीजिए, ठीक है, और उनको ट्रैवल के लिए आप मोटिवेट कीजिए, है ना, वो बाहर निकलेंगे, दे विल सी. एंड स्पेशली गर्ल्स, वेरी इंपॉर्टेंट. बॉयज के लिए फिर भी इजी है, वो लोग चले जाते हैं, बट गर्ल्स के लिए नहीं है. आई थिंक आई रियली वांट पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं तो प्लीज आप अपने बच्चों को, गर्ल्स को, है ना, एंड जैसे हम पेरेंट्स के साथ बात कर रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, व्हाट इज दैट वन मिसकंसेप्शन अबाउट सोलो ट्रैवल जो आप यहाँ पे मिथ बस्ट करना चाहते हो? See, in India, if I talk about, so it's mostly for women and girls के लिए it's about the safety concern. Right. See, that is the most, you know, कि safety है and all. और दूसरा safety के अलावा मुझे लगता है कि रितेश, एक तरीके से हमारी सोसाइटी की कंडीशनिंग ऐसी है कि उन्होंने ज्यादातर वुमेन को ऐसे इंडिविजुअली ट्रैवल करते हुए, अब थोड़ा सा फिर भी कल्चर चेंज हुआ, लेकिन नहीं देखा है पहले. तो उनको लगता है अरे अकेली कैसे जाएगी, क्योंकि हमारा सोसाइटी सेटअप ऐसा है कि वुमेन हमेशा डिपेंडेंट वाला पार्ट दिखाया गया है ना. हमने अपनी मदर्स को देखा है, वो हमेशा फादर्स के साथ ही जाती हैं मनी के लिए, बाकी चीजों के लिए. सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट उनको लगता है कि अरे अकेली क्या करेंगी, तुम गुम गई, तुमसे कुछ हो गया, तुम कैसे कैसे संभालोगी चीजें. तो आई थिंक पेरेंट्स का सबसे बड़ा वो कंसर्न है, ठीक है, कि सेफ्टी के अलावा उनको लगता है कि ये मैनेज कैसे कर पाएगी. बट आई थिंक चाहे हम सेफ्टी की भी बात करें, सो मैं ऐसा नहीं कहती कि इफ यू आर ट्रैवलिंग सोलो, सो एज अ वुमन, राइट, एज अ फीमेल सोलो ट्रैवलर, आई ऑल्सो टेक केयर ऑफ माई सेफ्टी. मुझे पता है मैं अपने ऊपर काम कर सकती हूँ, आई कैन नॉट चेंज अदर पीपल अराउंड मी, है ना, बहुत सारे जो चीजें हैं. तो सेफ्टी चाहे आप इंडिया में हो, कहीं पर भी हो, सेफ्टी के हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि दिन में ट्रैवल करो. देयर आर सर्टेन टेक्निक्स एंड ऑल, राइट, वो यूज करते हैं. बट आई थिंक वी शुड डेफिनेटली एनकरेज पीपल टू ट्रैवल. सो देयर इज अ साउथ की कोई मूवी है, कोई मराठी मूवी है शायद से, आई डोंट रिमेम्बर द नेम. इट्स अ वंडरफुल मूवी एंड आई टेल माई स्टूडेंट्स टू वॉच दिस मूवी. तो उस मूवी में क्या है रितेश, आपको भी अगर टाइम मिले तो आप जरूर देखना. तो उसमें एक ग्रुप ऑफ वुमेन है जिसमें सब मिड यू नो 40s में एंड 50s में हैं, और कुछ यंग लोग भी हैं. और वो लोग प्लान करते हैं कि हम एक यूरोप ट्रिप पे जाएंगे, ग्रुप ट्रिप पे जाएंगे. हालांकि वो ग्रुप जा रहे हैं लेकिन सभी सोलो आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं. तो वो एक ग्रुप ट्रिप ज्वाइन करते हैं, हर कोई अलग अलग स्ट्रेंजर्स हैं सबके लिए. एंड उस ट्रिप ने उन लेडीज की लाइफ को कैसे बदला. उन्होंने यू नो इवन एक बेसिक सा एक हाउस वाइफ है जिसको गूगल मैप तक नहीं देखना आता, वो गुम हो जाती है सिटी में. सो आई थिंक दैट्स रियली एम्पावरिंग, यू नो, ऐसी मूवीज एंड कंटेंट. So I always motivate my students to go for travel if you want to work on your personality. Simple है, travel करो,
experiences karo, and with travel one more thing Ritesh I would like to add is volunteer karo. Right. Volunteer activities में आपका participate करना बहुत जरूरी है. Now when you say आपने अभी मेरे को बोला कि गुरमीत बाहर लोग मतलब jobs करते हैं है ना, volunteer करते हैं, part time jobs करते हैं to know कि उनको life का purpose क्या है, करना क्या है. So in India we don't have this culture, right? So there are wonderful अभी कुछ startups आ रहे हैं. So I know a friend of mine, Akash, volunteer यात्रा करके उनका platform है ना, doing great jobs, right? Then there are like another friend Jeet in Chhattisgarh, they're doing wonderful great work. So I know a lot of people जो बहुत efforts put कर रहे हैं. So मैं अपने students को कहती हूँ गो फॉर वॉलंटियर वर्क. किसी स्कूल में जाओ, 1-2 महीने पढ़ो, कॉलेज के बाद किसी एनजीओ को ज्वाइन करो, कुछ भी करो, लेकिन कॉलेज के अलावा आप क्या कर रहे हो, आपके सीवी में यही तो चीज ऐड होगी. सिर्फ ये नहीं ना कि सुबह आप आ रहे हो, कॉलेज आ रहे हो, आपने जो कॉलेज में पढ़ाया उसके बाद घर गए, सो गए. आजकल तो सोशल मीडिया है, नेटफ्लिक्स है, उसमें आप अपना टाइम लगा रहे हो. बट यू नो पार्टिसिपेटिंग इन ऑल दीज एक्टिविटीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल तो ट्रैवल एम्पावर्ड ही बहुत है. अगर आप देखोगे देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज वेयर यू कैन गो टू द हॉस्टल्स एंड देन पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज. एंड एक्चुअली देयर आर सम रिट्रीट्स हैपनिंग अराउंड, राइट? आई एम श्योर यू आर आल्सो होस्टिंग वन. yes, yes. So there are retreats happening like जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है. फॉर एग्जांपल यू आर इंटरेस्टेड इन startups or you're interested in skills enhancement, whatever the topic is, there are retreats happening. It could be in locations like Rishikesh, like Manali, like Leh, otherwise out of India too. People should try those also. So solo का solo travel है और साथ के साथ आपका exposure है to new avenues, right? So ये चीज भी कर सकते हैं. I'm sure you'll be posting your retreat details on नीचे post कर देंगे so as you get a chance to have trainings. But one thing from your lifestyle, if anybody has to take that one habit of yours for growth, तो वो क्या होनी चाहिए? So if I talk about my entire journey, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही रोलर कोस्टर रहे, बहुत सारी चीजें हैं. One thing that I always two things I firmly believe, right, जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया. First is believe in yourself, right? खुद के ऊपर आपको बिलीव होना बहुत बहुत जरूरी है. आप कोई चीज, आपने कोई टास्क शुरू किया, आपने कोई काम शुरू किया, ये यकीन होना कि मैं ये कर लूंगा या कर लूंगी, ये बहुत बड़ी चीज है. ठीक है. देयर आर गोइंग टू बी पीपल अराउंड यू जो आपको कॉन्स्टेंटली पोक करेंगे कि भाई ले तुम इसमें क्या कर लोगे. जब आप पंजाबी च कह देना भी तू बड़ा आया है कि कर लेगा. बट यू नो इफ यू फर्मली बिलीव कि मैं कर लूंगा, मेरे अंदर वो कैलिबर है, आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू डू बट आई एम गोइंग टू डू दिस, राइट? खुद के ऊपर यकीन होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आप वो ट्राई करो चीज, ठीक है. And second is do not compare yourself with other people. I always tell my students, I follow this thing in my life. Doesn't matter कि मेरे बैचमेट्स क्या कर रहे हैं, ठीक है, या इनिशियल 20s में भी मैंने कभी कभी कंपेयर नहीं किया, ठीक है. हालांकि वो धीरे धीरे वो चीज आती है, बट इवन फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज मैंने कभी भी अपना कंपैरिजन नहीं किया. इट्स माई जर्नी. सो आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स कि ये आपकी जर्नी है, ठीक है. Every person, Ritesh is coming from a different background. Now आपको अलग स्कूलिंग मिली है, ठीक है, आपका फैमिली एनवायरनमेंट अलग रहा है, मेरा अलग रहा है, हम सेम लेवल पे नहीं हो सकते. आपकी एक अलग जर्नी है, मेरी एक अलग जर्नी है. सो अगर मैं इस लेवल पे आके कंपेयर करूं कि दिस पर्सन इज डूइंग मच बेटर देन मी, दे विल हमेशा कोई ना कोई आपसे बेहतर करेगा ही करेगा, ठीक है. आपको उससे कंपेयर नहीं करना. आपकी जर्नी क्या है, आप कल से खुद को कैसे बेटर कर पा रहे हो. एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई वांट टू टॉक अबाउट इज फेलियर्स लाइफ में होने जरूरी हैं. एक्सेप्ट करो, फेलियर के रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस होनी चाहिए. और प्लीज फेल हो जाओ, लाइफ में फेल हो. मतलब आपको लोग कहते हैं कि लाइफ में आपको सक्सेसफुल होना चाहिए, बट ऑनेस्टली, राइट, मैं ये कहती हूँ कि प्लीज आप लाइफ में फेल हो, क्योंकि जब आप फेल होगे तभी आपको पता चलेगा कि अब सक्सेस कैसे लेना है. People don't talk about failures. Failure, I consider, Ritesh, is very very underrated. आप जाओगे कॉलेजेस में या आपको हमेशा पेरेंट्स भी कहेंगे सक्सेसफुल होना है, फेलियर के बारे में कोई बात ही नहीं करता है. मतलब वो एक ऐसे निग्लेक्टेड, जैसे घर का वो बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा जिसको कोई पूछ नहीं रहा, तो फेलियर को कोई नहीं पूछता है. बट आई कंसिडर कि लाइफ में फेलियर होना बहुत बहुत जरूरी है. जितने आप फेलियर्स देखोगे आपको तभी समझ में आएगा कि ये opposite नहीं है सक्सेस का. दिस इज पार्ट ऑफ योर पाथ, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ टू फेल. लाइफ में आप फेल हो गए, मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ क्योंकि मुझे आप अपनी सक्सेस स्टोरी से ज्यादा अगर आप फेल हुए हो अपनी जर्नी तो के बारे में आप बताओ, मेरे को आके बताओ कि मैम हम इसमें फेल हो गए. मैं आपके लिए क्लैप करूंगी, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी कि आप इसमें फेल हुए, बिकॉज दैट शोज कि आपने कुछ नया ट्राई किया. सो आई थिंक ये 2-3 चीजें हैं. आई ऑलवेज टेल ड्यूरिंग माई सेशंस, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ
कि ये आप फंडा फॉलो करो लाइफ में, एंड आई थिंक दैट इज लाइक गुड टू गो। राइट। है ना? सो और चीजें 100% आई थिंक दैट जो आप कह रहे हो ना कि सबसे पहले जो लोग आपको कहते हैं ना कि आप नहीं कर सकते, वो आपके होते भी क्लोज वंस हैं। बिल्कुल So बिल्कुल। you have to break that circle. You have to हम्म, come out of that circle, and that is possible with solo travel. Again, एग्जैक्टली, अलॉट when मेनी you're थिंग्स। saying about failure, यही हम्म चीज है कि आप अगर जर्नी को एंजॉय करना सीख जाओ, that हम्म is again solo travel. You won't enjoy एग्जैक्टली। by reaching to the destination. The journey will give you the more सो exposure. ट्रू सो ट्रू। So actually, चीजें सारी interrelated ही हैं. Thank you, Geet. That was a great, great, great conversation. I'm sure for all of the audience and for me also. ओके। मुझे लग रहा है कि that training which you give to students and that perspective that you bring on this series, it'll be valuable to students in a way कि life में ना कुछ भी possible है. बिल्कुल All thing बिल्कुल। is you have to just believe in बिलीव इन yourself, योरसेल्फ। then you have to try things out, then you have to fail at those, and then you'll definitely be तभी successful, आपको right? समझ में आएगा। So that was all about the series. That was all about the journey of Gurmeet Kaur, जिन्होंने ये बताया कि training is important, but more than training, it's about doing, and more than doing, it's about believing in yourself कि आप ये चीज कर सकते हो. ये बिल्कुल raw, authentic conversation है, which will give you the ground reality कि कैसे ये अपनी journey के अंदर successful हैं और उसी चीजों को implement करके how you can be successful as well. So with this thing, with this note, we'll take leave from the audience, and we'll थैंक यू। definitely meet on the next episodes, next series, जिसमें you'll get to know more guests, more ground reality, and यस। you'll learn the life in real time. तो आपने बोला कॉफी तो पिए फिर कॉफी, एटलीस्ट. हाँ। मतलब कॉन्वर्सेशन इतनी अच्छी थी हमारी, कॉफी मतलब वो भूल गए. इतनी मतलब हीट में चल रही थी कि हमने कॉफी ठंडी कर ली।